بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں خالدہ راجہ، حاضر ہوں پروگرام عوام کی سوچ میں، اور آج میں آئی ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ جاننے کے لیے کہ اراکین پارلیمنٹ حکومتی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ یہ سیاہ ترین دن ہے جو حکومت ایک غاصب حکومت ہے، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر ہم اسے حکومت نہیں تسلیم کرتے۔ جو غاصب ہو، ظالم ہو، اس کو آپ نہ تو حکومت تسلیم کر سکتے ہو اور نہ ہی اس کو حکومت کہنا کوئی جائز ہوگا۔ 25 کروڑ عوام کی جو ہے دل آزاری کی گئی ہے، جو بجٹ دیا ہے وہ بھی عوام دشمن ہے، عوام کا قتل کرنے کے مترادف ہے۔ ان کو کیا پرواہ ہے عوام کی بہبود کے لیے یا پاکستان کی فلاح کے لیے؟ یہ تو اپنی تجوریاں بھریں گے اور بھاگ جائیں گے، پاکستان اور زیادہ غربت کی دہلیز میں دھکیل کے چلے جائیں۔ سر، کیا لگتا ہے کہ حکومت نے کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا عوام کو؟ ہاں، اپنے آپ کو دیا ہے، عمراء کو دیا ہے، شرفاء کو دیا ہے۔ پاکستان جو ہے اشرافیہ کا پاکستان بنا کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ غریب عوام کو یا تنخواہ دار کو کوئی جو ہے مراعات نہیں دی گئی ہیں۔ جتنی مہنگائی یہاں مسلط کی گئی ہے اس کے بدلے میں تو عشر عشیر بھی ان کو نہیں دیا گیا جو تنخواہوں میں بڑھوتی کی گئی ہے۔ سو یہ جو ہے اپنے لیے یہ ذرا 50 گاڑیوں کا پروٹوکول لینا بند کر دینا۔ یہ اتنی جو ہے پرتعیش جو زندگی یہ گزار رہے ہیں، ان کو ذرا ختم کریں نا، ان کا پروٹوکولز اپنے ختم کریں نا، عوام کو وہی سہولتیں۔ تو سر، کون ختم کروائے گا اگر پارلیمنٹیرین خود نہیں ختم کروائیں گے؟ آپ لوگ اسمبلی میں بولیں گے تب ہوگا۔ ہم تو بول رہے ہیں نا، پہلے گھس بیٹھیوں کو تو نکالیں۔ وزیر اعظم خود غاصب ہے، وزیر اعظم ہارا ہوا ہے بھائی۔ جو پاپا روم ہے نواز شریف، ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا ہے۔ یہ خواجہ آصف بڑی بڑکیں مارتا ہے روز اور کہتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ یہ خود ذرا اس کو شرم اور حیا ہو۔ یہ ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے، بری طرح سے شکست خوردہ جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے دن دنا کے باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی۔ جب تک دیکھیں، جب جھوٹ پر کوئی چیز ہوگی، فراڈ پر کوئی چیز ہوگی، اس عمارت میں کبھی برکت نہیں ہوگی اور وہ کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ بھئی یہ تو پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کا جو اطمینان ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ حکومت کی کارکردگی اچھی رہی ہے۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے اوپر جا رہی ہے، چیزوں کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، تنخواہیں لوگوں کی بڑھ رہی ہیں۔ تو تنخواہوں پہ ٹیکس لگے ہیں لیکن وہ بہت ہی معمولی قسم کے ٹیکس ہیں، کوئی بہت زیادہ اس میں فرق تو نہیں ہوا، اور ٹیکسوں کے ذریعے ہی حکومتیں چلتی ہیں۔ تو ٹیکس تو دینا ہی ہے، میں نے بھی دینا ہے، آپ نے بھی دینا ہے، سب نے دینا ہے۔ اچھا سر، کیا لگتا ہے کہ آئندہ 3 مہینوں کی کارکردگی کیا ہوگا؟ چونکہ ہم نے سمت جو ہے درست اختیار کر لی ہے تو ہر مہینہ پچھلے مہینے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ عوام کو کس حد تک ریلیف ملے گا؟ سر دیکھیں کہ بجلی دن بدن مہنگی ہو رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں نا، تو جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی تو سب چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی۔ سر، پارلیمنٹیرین کی نظر میں حکومت کے سود کیسے ہیں؟ بھی دیکھیں، اب میں بات کروں گا تو کہیں گے جی میں تو اپوزیشن کا ہوں۔ میں اپوزیشن تو نہیں ہوں، میں حکومت ہوں، مگر ہمیں جبری طور پہ ہمیں جو ہے نا ہٹایا گیا ہے اور ایک نالائق حکومت کو، جیلی حکومت کو قوم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ تو جب ایک حکومت ہے جیلی تو اس کے 100 دن کیا ہو گئے؟ اس کے 100 دن بھی فراڈ پہ مبنی ہے، دکھ پہ مبنی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے۔ 100 دن کے اندر جو کسان کو قتل کیا اس حکومت نے، مزدوروں کو مارے، مہنگائی کے طوفان برپا کیا، اور بجلی کے جو بل ہیں لوگوں کو چیخے نکال رہے ہیں، کہیں گورنمنٹ ہے نہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ جب فارم 47 کے ذریعے ایک بہت بڑا فراڈ کر کے جبری طور پہ گن موائنٹ پہ بلکہ بندوق کی نوک پہ اس حکومت کو بنایا اور بٹھایا گیا، تو اس سے امیدیں بھی یہی ہیں کہ انہوں نے ملک میں خرابی کی ہے، مزید خرابی کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ مزید ان کو چند دن مل گیا تو میرا ملک تباہی کے دھانے پہ مزید چلا جائے گا۔ سر، یہ جو بجٹ پیش کیا گیا 100 دن کے اندر، کس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بجٹ تو ہے نہیں، تو بجٹ تو آئی ایم ایف کا ہے، امریکہ کا ہے۔ آئی ایم ایف نے جو کچھ کہا ہے وہی کچھ کیا ہے۔ 20,000 ارب کے نئے ٹیکس لگائے ہیں، کیا ہے؟ مری قوم کو اس سے جو خون ان کا نچوڑ رہے ہیں۔ یہ تو ایک بہت تباہی ہے اس بجٹ میں، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ساری بدماشی ہے، اور پیپلز پارٹی نون لیگ ایک دوسرے کو بھی بلیک میل کریں۔ دوسری کیوں پیپلز پارٹی اس وقت دوسری ایم کیو بن چکی ہے، ایم کیو 2 ہے۔ جیسے وہ بلیک میل کرتے تھے، اب 2 بلیک میلر ان کے ساتھ ہیں اس حکومت کے، وہ خود بھی جو ہے نا۔ سر، آپ کو کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا ہے؟ دیکھو نظر دور دور تک کوئی چیز آپ بتائیں، ایک کی بہتری ہے، کوئی بتا دے، چلو یہ نہ کہہ کہ جی جمشید دستی کہہ رہے کوئی بتا دے۔ تباہی بربادی ہے۔ دیکھو نا، بات بدقسمتی ہے۔ آٹا سستا ہوا ہے،
सिर्फ इस मुल्क में ये बस ये इन्होंने बेगैरती सस्ती की, अपनी लूट मार को ये पेट्रोल का क्या फ़ायदा हुआ है आवाम को? बिजली के बिल आपने वहाँ कितने बढ़ा दिए? एक तरफ अगर आपने चंद रुपयों में पेट्रोल को गिराए और बिजली का तूफान बर्पा कर दिया है, तो बाकी चीज़ें आप देख लें, क्या बाकी बच गया? आपने किसान को मार दिया है, मजदूर को मार दिया, सनतें आपकी बंद हो रही हैं। तो एक चीज़ आके नीचे कि पेट्रोल की कीमतें चंद रुपए कम करके इन्होंने जो है ना, एक चीज़ का 500 रुपये का बिजली का बिल आता, गैस की कीमतें बढ़ा दी, अब उनसे 1.5 लाख रुपये वसूल करें, तो कौन सी आप बताएं कि इनकी कारकर्दगी अच्छी नज़र आ रही है? हुकूमत की जी 100 दिन नहीं है, ये तो 100 साल से बराजमान है हम पे। चोर और चक्के डाकू बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का 76 साल में। बिजली आसमान से बात कर रही है, गैस के बिल, पानी, खाना, लोग कहाँ जाएं? आम आदमी, मैं कमाती हूँ यहाँ से, एक MNA हूँ, मेरी 1.5 लाख तनख्वाह है, मैं हर महीने के आखिर में तंग होती हूँ। ये आम आदमी जो 25-30 हज़ार कमा रहा है, वो क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? फिर कहते हैं पुलिस करप्ट है, फौज करप्ट है, मौलवी करप्ट है। करप्ट होगा नहीं, आप इस तरह लोगों को मुल्क रखोगे? हमारे लोगों की सिंपल ज़रूरतें होती हैं, स्कूल, अस्पताल, बच्चों की शादियां, उम्रा कर लिया या हज कर लिया। और हमारे लोग क्या चाहते हैं? जहाज़ नहीं चाहिए हमारे लोगों को, 8 लाख का जूता नहीं पहनते, 10 लाख की जैकेट नहीं पहनते, उनको हया का खाना चाहिए, हया की ज़िंदगी चाहिए। ये लोग हमसे हमारी हया छीन रहे हैं, तो क्या होगा? आपका क्या ख्याल है? नहीं, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने बिल्कुल रिलीफ ही नहीं दिया? आप क्या कहें? हाँ जी, 25 रुपये तनख्वाह बढ़ा दी और 30 रुपये टैक्स उस पर डाल दिया। बहुत तनख्वाह बढ़ाई है उन्होंने, माशाल्लाह, इनकी तो इबादत करनी चाहिए, तो बड़े काबिल फाजिल लोग हैं। तो मैम आप फिर पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं करती इस हवाले से? मैं करूँगी, मुझे कोई बारी देगा? हमें तो बोलने नहीं देते, हम तो उनके दुश्मन हैं, इनको लगता है। वो तो कहते हैं कि आप लोग पार्लियामेंट में शोरगुल मचाए रखते हैं। क्योंकि बोलने नहीं देते ना। वो जो लोग फॉर्म 45 की पैदावार है, वो चोर और चक्के जो 9 फरवरी को इलेक्शन करवाया और फॉर्म 47 से जीत के आए, झूठे कस्में कुरानों पे खाई हैं, वो लोग सारा दिन भाषण देते, तो हम कब बोलेंगे? देखिए, हुकूमत की कारकर्दगी तो सबके सामने है। मैं समझता हूँ अभी भी चंद जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चंद जो टेक्नोक्रेट्स हैं बल्कि, और वो जिस तरीके से हुकूमत चला रहे हैं, तो शायद, लेकिन बेहतरी आ रही है। अब उसमें अपार्ट फ्रॉम दिस के कौन कहाँ जाता है, किसकी बात सुनी जाती है, माजरत के साथ हमारे जो लीडरान हैं उनकी क्रेडिबिलिटी कतई तौर पर नहीं है। अब जो नए लोग शामिल किए गए हैं उसकी वजह से आई पर्सनली फील चाइना भी बहुत ज़्यादा, और CPEC 2 जो हमारी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, अब उस पर अमल दरामद हो रहा है। चाइनीज़ हमसे बहुत नाराज़ थे पिछले अदवार में। अपार्ट फ्रॉम, मैं किसी लीडर के बारे में, किसी पार्टी के बारे में कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन आज के चाइना के जो लीडर्स हैं वो हमारे मौजूदा वक्त के जो लोग हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, जो कौम को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर एतमाद कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। देखिए, मैं अगर जो बात करूंगी ना, तो उसके साथ मैं सपोर्ट मेरी जो करेगी वो मेरी एक रिपोर्ट है जो मैंने हाल ही में पढ़ी है, 2050 पाकिस्तान इन 2050 फ्यूचर उन्होंने बताया, और वो PwC की रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बाय 2050 अगर इसी तरह चला, इंशाल्लाह ताला जो बेहतरी नज़र आ रही है, तो पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द 16th डेवलप्ड इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात है। वो उन्होंने कोट किया कि इटली और कनाडा से भी ज़्यादा बेहतर उसकी जो इकोनॉमी है वो होगी। तो मैं बहुत एक पॉजिटिव बंदा हूँ, मैं समझती हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और वो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये आगे को अगर हम इसी तरह डेवलपमेंट की उसकी अपनी जो हमने एक इकोनॉमिक जो कवर कर लिया है चैलेंजेस को, अगर इसी को हम आगे कैरी करेंगे तो इंशाल्लाह कोई रीज़न नहीं है कि हम ना बन सकेंगे। मैम 100 डेज़ में क्या लगता है किस किस सेक्टर में बेहतरी है? देखिए, पंजाब को अगर मैं देखूं तो मेरा ख्याल है CM साहिबा ने बहुत काम किया है, और उनके कितने 2 महीने 100 दिन में उन्होंने अपने जो दिया है 33 मंसूबे तो उन्होंने वही दे दिए थे, और दहलीज तक का दस्तक उनका जो प्रोग्राम है, मैं समझती हूँ बेहतरीन प्रोग्राम वो कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। और सेहत के हवाले से कह लें, आप एजुकेशन के हवाले से कह लें, स्पेशल बच्चों की नीड्स के हवाले से कह लें, उन्होंने जो ऑटिज़म का स्कूल खोला है, और उसकी जो उन्होंने जो करिकुलम डेवलप कर रहे हैं वो स्पेशल नीड्स के बच्चों के स्पेशल नीड्स के हवाले से करिकुलम होगा। तो ये सब चीज़ें बेहतरी की तरफ है। ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए, उनको सेफ हरासमेंट के से बचाने के लिए जो 100 पैनिक बटन्स उन्होंने लाहौर में लगाए हैं, तो उनके किन किन कामों को मैं आपको गिनवाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ते जा रहे हैं, और शी इज़ अ डूअर। ये मैंने उनके साथ काम जो करती हूँ और जो देखा है, पिछले जब वो वापस आई थी एज चीफ ऑर्गेनाइज़र, तो तब भी मैंने फ़ील किया था कि जो हमने काम उनके साथ किया, तो शी वांट्स वर्क डन। मैम आप बजट को किस नज़र से देखती हैं? बजट देखें, चैलेंज बहुत बड़ा है, बजट टफ़ हो जाता है, होगा भी, मगर मैं समझती हूँ जैसा प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब ने कहा है कि अगर हम अपने आप को थोड़ा सा ये बर्दाश्त कर लें ये वाला टाइम, तो 1.5 साल मुश्किल का वक्त है।
फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा। मैं तो समझता हूँ कि इन हालात में अभी जो 100 दिन गुजरे हैं वो बड़े हौसला अफजा है। अल्हम्दुलिल्लाह के जो मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, नवाज़ शरीफ साहब की हिदायत पर जो ये 100 दिन गुजारे हैं, इसमें सबसे पहले आवाम को रिलीफ देने के लिए फोकस किया गया। पहला रिलीफ जो महंगाई को कंट्रोल करना था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वाज़े तौर पर कमी आई है। जो आटा और चीनी और चाय और चावल और ये घी, ये हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इन 100 दिनों में हुकूमत कामयाब रही है और आटा तकरीबन 3000 रुपये पर मन के हिसाब से कम हुआ है। इसी तरीके से घी में कीमत में कमी आई है और चावल की कीमत में भी कमी आई, पेट्रोल की कीमत में भी कमी आई। तो ये 100 दिन बड़े हौसला अफजा रहे हैं और मैं तो समझता हूँ हुकूमत ने अच्छे इक़दाम लिए हैं जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिला है और अवामी नुमाइंदों का यही काम है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा आवाम को मिलना चाहिए और इंशाअल्लाह बड़े हौसला अफजा नताइज सामने आए। 100 दिन के अंदर बजट भी पेश किया गया, क्या कहते हैं अवाम दोस्त सा बजट? देखें यही तो अभी मतलब इस पर बहस हो रही है। तो इन हालात में जो बजट पेश किया गया, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बड़ा मुश्किल क्रूशल टाइम था, लेकिन फिर भी जो हुकूमत ने इस बजट को पेश किया है, जो आवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह जो सरकारी रिलीफ तो कोई नहीं है, टैक्सेस ही टैक्सेस हैं। रिलीफ देखो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है ना मुलाजम तबका होता है, जब तनख्वाह में 25% इजाफा हुआ है, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और ये बड़ी अच्छी बात हुई है। बल्कि यानी तो उस पर टैक्स भी तो लगा दिए गए हैं। टैक्स जो लगाएं, अगर जो ज़्यादा टैक्स लगाएं, जिन लोगों पर लगाने चाहिए ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अशराफिया पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो किस तरीके से आमदन होगी। कौन से अशराफिया पे लगाए गए हैं टैक्स? किसी पे नहीं लगा, गरीब आवाम रेट पर आप खुद अंदाज़ा लगाएं। जिस तरीके से जो लोग मतलब रातों रात अमीर तरीन बन रहे थे, तो आपने देखा प्रॉपर्टी टैक्स उनमें इजाफा हुआ है। तो ये भी एक अच्छा कदम उठाया है और आम लोगों को फ़ायदा देने के लिए टैक्स में जितनी कमी हो सके वो कमी भी करनी चाहिए। अभी चूँकि बजट पर बहस हो रही है, हर जो मेंबर है पार्लियामेंट्री जो इसका फोरम है, उस पर मेंबर कहा कि वो अपनी तजावीज़ें देंगे तो इंशाअल्लाह उससे बेहतर नतीजे आएंगे। आप यहाँ धूप में खड़ी हैं, मैं इस वक्त आ रही हूँ, मैं इन गाड़ियों को देख रही थी, ड्राइवर्स को देख रही थी और गर्मी की शिद्दत देख रही थी। तो यहीं से ख़ुद से शुरू करने की बात होती है, पार्लियामेंट से शुरू करने की बात होती है कि हम अपने आम लोगों को या जो काम करने वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, हम उनको कितना आराम दे सकते हैं। तो आप और हम उस कश्ती के सवार हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बोझ उसी पे पड़ता है जो कि तनख्वाहदार तबका है, जो ख़ुद कमाता है। अगर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कोई काम कर रहे होते हैं तो उन पर भी कमाई टैक्स आप लगाएंगे, लेकिन जो इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनको आपने एक को फाइलर कर दिया, एक को नॉन फाइलर कर दिया, अगर उनको हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर सवाल क्या है? मैम क्या लगता है जो टैक्स पेश किया गया वो कैसा रहा? इस पर बजट पेश किया गया वो कैसा? बजट आपने सुना, बजट में आपके लिए और मेरे लिए क्या है? आप हम समझते हैं टैक्सेस ही है मैम जी, नहीं टैक्सेस इसलिए हैं कि ये पुराने सालों की कारकर्दगी है जो हमारे इस वक्त तक पॉलिसीज़ रही हैं, जो कोई भी हुकूमत हो किसी को इधर से उधर नहीं करें। लेकिन क्या उन्होंने मुस्तकबिल में देखा, क्या उन्होंने ये देखा कि हमारे जो बच्चे आने वाली पौध है, जो नौजवान है, हम उसके लिए क्या मुल्क छोड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं? छोड़ने की तो बात ये है, लेकिन हम बना क्या रहे हैं उनके लिए? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं दिल को तकलीफ़ पहुंचाने वाली हैं। हम यहाँ आराम से रहें, आप समझते हैं पार्लियामेंटेरियन तो बड़े मज़े से हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मसले मसाइल यहाँ नहीं डिस्कस हो सकते। ठीक है, मैं अगर कराची छोड़ के मैम तो ये जो IMF है ये हमारी पार्लियामेंट तक मुसल्लत हो चुका है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये IMF तो पूरी कौम पे मुसल्लत हो गया है भाई, सिर्फ पार्लियामेंट पे नहीं हुआ है। ये हमारी उस कारकर्दगी का अंजाम है जो हमने बग़ैर सोचे समझे बड़ी क़ुव्वतों, बड़ी ताकतों और अपने आप को टेम्परेरीली रिलीफ पहुंचाने के लिए इक़दामात उठाए। इधर से पैसा ले लो, इधर से पैसा ले लो, ये नहीं सोचा कि इसको अदा कल कौन करेगा। मैं करूँगी, आप करेंगे, मेरे बच्चे करेंगे। आज जो एक बच्चा पैदा हो रहा है वो 2.5 लाख रुपए का मक़रूज़ है, उसका क्या कसूर है? मुझे मैं अच्छी है, ठीक है जी, बस सही है। मैं तो कहता हूँ शुक्र करना चाहिए हर हाल में बस, और दुआएं करनी चाहिए कि ठीक हो जाए बस। जैसे मैं कह रहा हूँ आम आदमी, तवज्जो हमारी आम आदमी होनी चाहिए
उसी के बारे में सोचें, उसी की फिक्र करें तो सब ठीक हो जाएगा। फिर क्या अल्लाह लगता है 100 दिन में आवाम को क्या रिलीफ दे सकती है? 100 दिन में क्या होता है जी, 100 दिन में क्या होता है? जो हुकूमत आती है वो 100 दिन का एजेंडा मैं रखती आपको अर्ज करूँ, ये जो है हमारे पे एक तासुर आ गया ना, 100 दिन 20 दिन 50 दिन मुमकिन ही नहीं है। मतलब इस पे बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम इस जगह पर आ गए हैं, यहाँ से उठने के लिए टाइम लगेगा। पूरे निज़ाम को हर चीज़ को सुधारना है हमने, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको सर 70 साल गुजर गए अभी तक कुछ नहीं सुधरा। 70 साल की तो बीमारी है ना, अब 70 साल की बीमारी आप कह रहे हो 100 दिन में ठीक हो जाए कैसे होगी? 70 साल की बीमारी। कौन सी हुकूमत, इनकी कौन सी कारकर्दगी है? इनकी आप कारकर्दगी समझते हैं? ये तो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। इनकी कौन सी कारकर्दगी है? ये फॉर्म 47 वाले, जिनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, जिनको अवाम ने वोट नहीं डाले। फिर ये जो आपको मेरे ख्याल में मेरी बहन, आपने नहीं सुना है, नज़र नहीं आपको आ रहा, जो उन्होंने डाका डाला है जो गंदम की इंपोर्ट पे, आपकी जो 70% जो पॉपुलेशन देहात में रहती है वो तो बेचारी, उन्होंने कुबाड़ा निकाल दिया, वो तो मर गए हैं जी। उनकी गंदम को ख़रीदने वाला नहीं है जी, उनको लल्ले तलल्ले पड़े हैं जी। महंगाई कहाँ जा रही है, आपकी प्राइसेस कहाँ जा रही है? सैलरीड क्लास जो हैं जी, उनकी तनख्वाह बढ़ाते हैं, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं जी बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजर रही है। और सर आपकी नज़र में इनकी कारकर्दगी 100 दिन की, ये 100 दिन की कारकर्दगी नहीं है, ये इनके जो है डे बाय डे मुल्क और पाकिस्तान की मईशत को ये जो है गर्मी रख रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और आए रोज़ जो इनका एक लम्हा जो है वो पाकिस्तान पे अज़ाब बन के गुजर रहा है। हुकूमती कारकर्दगी तो कोई 100 दिन में देखी नहीं, और मुझे लगता है कि हम 5 साल में भी नहीं देखेंगे, लगता नहीं है। सर कहीं पे भी रिलीफ नहीं नज़र आ रहा आपको? देखिए इस बजट में तो कुछ भी नज़र नहीं आया, तो ये 5 साल का बजट इन्होंने दिया है, पता नहीं 5 साल चलते हैं नहीं चलते, लेकिन बजट तो 5 साल को होता है, 1 साल को होता है, 1 साल का। तो फिलहाल तो इसमें कोई अच्छा हमें नज़र नहीं आया। सर जो भी हुकूमत आती है वो अपने एक 3 महीने की ये कारकर्दगी रखती है कि हमने इस जगह पे आवाम को रिलीफ देना है, तो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता कि किस जगह पे रिलीफ दिया गया है? देखिए ये हेर फेर तो नज़र आया है, कुछ कीमतें एक तरफ कम की हैं, दूसरी तरफ बढ़ा दी हैं, तो इस तरह से ये हेर फेर ये अवाम के साथ एक मजाक है। मैं समझता हूँ कि इसका कोई ऐसा रिलीफ नहीं नज़र आ रहा कि अवाम को जिससे फ़ायदा हो। क्या कहते हैं, कैसी कारकर्दगी है? बहुत मायूस कौन है। ये 4 महीने जो जब से हुकूमत इनकी कायम हुई है वो मुल्क मुश्किलात में, और ये जो बजट भी दे रहे हैं उससे मज़ीद कौम जो है, अवाम जो है मुश्किलात में मुब्तला होगी। तो क्या लगता है कि हुकूमत बेहतरी की तरफ जाएगी या नहीं? देखिए जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सर 70 सालों से इस्तेहकाम तो आया नहीं आया ना, लेकिन बहरहाल क्यों? इसलिए कि हमारा सियासी इस्तेहकाम लाने नहीं दिया गया। कभी फ़ौज बराह रास्त इंटरफेयर करती है, कभी बिलवासा करती है, जिस तरह इस वक्त हो रहा है। तो ये हाइब्रिड हुकूमतें नहीं चल सकती जब तक अवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत के पास इख्तियार नहीं होगा, मुल्क में मईशत भी दुरुस्त। हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी के हवाले से अरकान पार्लियामेंट का ये कहना है कि 100 दिन के अंदर हुकूमत अवाम को सर्व करने में नाकाम रही है। साथ ही साथ अरकान पार्लियामेंट का ये भी कहना है कि बजट में अवाम पर टैक्सेस के बम गिराए गए हैं। आज की अवाम की सोच यहीं तक, अगली अवाम की सोच में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।